Hello students, I am Sika and I am going to teach you science for class 3, chapter 3. Name of chapter, the world of animals. Before starting the chapter, we already know that plants and animals are living things and birds, fish and insects are also animals. And animals can go from one place to another place. In the previous chapter, I have told you that animals move from one place to the another place in search of food or to protect themselves from their enemies or to find the shelter or to find the water. They move from one place to the another place. The movement of one place to another place of animals is called locomotion. In the first chapter I have explained this. Now in this chapter we will learn animals without backbones and animals with backbones and how many parts in how many parts animal with backbones are divided, like fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. So, and how these animals move, eat, breathe, reproduce and sense things around them. So students, this chapter I will teach you in two parts. Okay. So this is the first part of chapter 3. So there are thousands of animals in this world. They can be divided into two main parts. इस संसार में अगर देखें तो बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारी वेराइटीज हैं एनिमल्स की. तो वो कितने पार्ट में? टू मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट है आपका एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स. Like some animals like amoeba and jellyfish, earthworms, roundworms, snails, insects, lobsters and starfish do not have backbones. Means इनकी backbones नहीं होती है. So this is a kind of animals which have not backbones. Okay. Next आपका group है animals with backbones. Means the animals which have backbones at the center of their back. So examples of animals with backbones: fish, amphibians, reptiles, birds and mammals are the animals which have a backbone or spinal column to support their body. Okay. So is it clear? Now we will move that I have told you that animals are divided in two main groups. First, animals without backbone and second, animals with backbones. So, if animals do not have backbones, so how their body being supported? इनकी body कैसे support कैसे होती है उनके? So, in this by this picture, I can explain you that animals without backbones have this type of body. If we talk about insects is the first largest group in this world which do not have backbones. Okay. So the first part of insect. Here is a bee. यहाँ पे किसकी फोटो दी गई है? बी की. अगर हम आप मॉस्किटो भी ले सकते हैं या फिर हाउस फ्लाई ले सकते हैं, कोई भी इंसेक्ट ले सकते हैं, बट यहाँ पे बी की फोटो दी गई है. तो इसके थ्रू हम आपको बॉडी पार्ट्स बताएंगे किसके, जिनके बैकबोन्स नहीं होती है. ओके. इंसेक्ट के बॉडी पार्ट्स बताएंगे. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ इंसेक्ट, हेड. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ इंसेक्ट. ओके. नेक्स्ट मिडिल पार्ट. इट इज कॉल्ड मिडिल पार्ट एंड इट्स नेम इज thorax. And next last or end part of insect is abdomen. Okay. So body of insects are divided in three main groups: head, thorax and abdomen. And some insects have antenna. Two antenna are fillers by which they sense the things around them. Okay. And have two eyes. And some insects have wings to fly and have 6 legs. Okay, by which they move. Okay, so this is all about insects which do not have backbones.
Okay, so is it clear? Now, if we talk about butterflies, butterflies have a long hollow tube in their mouth. आपने बटरफ्लाई देखी होगी, उनकी क्या होती है, आप उनका माउथ में देखेंगे तो एक लंबी सी हॉलो ट्यूब जैसी होती है, उससे वो क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं, फ्लावर का जो नेक्टर होता है उसको सक करने में, उसको चूसने के लिए वो हॉलो ट्यूब यूज करते हैं। अगर प्रोसेस की आप बात करें तो आप फ्रूटी पीते हैं ना, या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो आप एक स्ट्रॉ यूज करते हैं, उस स्ट्रॉ के जैसे ही ये हॉलो ट्यूब को यूज करते हैं कौन, बटरफ्लाई या सम अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो, लाइक मॉस्किटो ऑल्सो। मॉस्किटो भी उसी हॉलो ट्यूब से ब्लड या नेक्टर को सक करते हैं। ओके, सो हाउ इंसेक्ट्स ब्रीथ, बिकॉज दे हैव नॉट नोज टू ब्रीथ, so how they breathe, they have tiny holes on their bodies called spicules. You can see here is a cockroach. कॉकरोच की बॉडी पे ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे स्केल्स होते हैं उसके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स के थ्रू ही ये एयर इंटर करती है, और पूरा नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, जिससे पूरी बॉडी में एयर मूव करती है, किसके, इंसेक्ट्स के। ओके, सो इन बाय दिस प्रोसेस इंसेक्ट्स ब्रीथ एयर। ओके, सो इज इट क्लियर? नाउ one activity is given in your book. See this activity. If you want to observe the part of an insect, so what things you need? You need a magnifying glass. आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत होती है, और एक इंसेक्ट की, डेड इंसेक्ट्स की। कोई आप जिंदा इंसेक्ट्स मत पकड़ना है, तो वो काट भी सकता है आपको, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, हाउस फ्लाई ले लेना, क्योंकि हाउस फ्लाई थोड़ी बड़ी होती है, या फिर एक डेड मॉस्किटो भी ले सकते हैं। उसको आप एक पेपर पे रखेंगे और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखेंगे, तो जैसे मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए ना, फर्स्ट आपको हेड, और मिडिल पार्ट क्या है, थोरेक्स, और थर्ड पार्ट क्या है आपका, एब्डोमेन। ये आप उसमें आराम से देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, सो अगर आप हाउस फ्लाई लेंगे तो उसमें क्या होता है, उसके विंग्स भी आप देख लेंगे। अंडरस्टूड? सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल्स विथ बैकबोन्स। तो एनिमल्स विथ बैकबोन्स आर डिवाइडेड इन फॉलोइंग ग्रुप्स। कौन कौन से वो ग्रुप है, एनिमल्स विथ बैकबोन्स, मतलब जो एनिमल्स की बैकबोन्स होती है वो किस 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। दीज 5 ग्रुप्स आर here, first fish, second amphibians and reptiles, then birds and mammals. Images are given here, you can see in your book also. Like first, fish. Fish is the second largest group of animal in this world. They are found in fresh water or sea water. या तो ये फ्रेश वाटर में मिलती है या सी वाटर में। Their body is covered with scales. इनकी बॉडी किससे कवर्ड होती है, स्केल से। नेक्स्ट आपका है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, बोथ, दोनों में रह सकते हैं ये, लाइक फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलामेंडर्स आर एम्फीबियंस। ये क्या है, सम एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक। फ्रॉग्स, टोड्स, सैलामेंडर एंड आर एम्फीबियंस। दे हैव ए मॉइस्ट स्किन। इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। ओके, हियर इज एम्फीबियन, यू कैन सी दिस पिक्चर given here. And third is reptiles. Reptiles, snakes, crocodiles, lizards and tortoises are reptiles. The body of reptiles are covered with scales. इनकी भी बॉडी जैसे आपकी फिश की बॉडी स्केल से कवर्ड होती है, वैसे इनकी भी बॉडी इससे स्केल से कवर्ड होती है। Some reptiles live on land while some reptiles live in water and land. कुछ रेप्टाइल्स लैंड पे ही सिर्फ रहते हैं और कुछ रेप्टाइल्स लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपका बर्ड्स। बर्ड्स दे फॉर्म द थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। क्या है ये, थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है इन द वर्ल्ड। ओके, स्पैरो, सम एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स।
sparrows, parrots, pigeons, eagles and owls are the birds. They have feathers and wings. इनके क्या feathers और wings होती है by which they can fly. This is the word. Okay. And last one is mammals. They form the fourth largest group of animals. क्या है? They are the fourth largest group of animals on the some examples of mammals: cows, tigers, lions, elephants and human beings are mammals. Okay, it means we are mammals. The body of mammals are covered with hair or fur. Body इनकी किससे covered रहती है? Hair से या फिर fur से. Okay. Now we will move to the next page. How animals move means you can see the heading. Animals move from place to place. So how fishes move? Fish live in water and swim with the help of their fins and tails. Fish जो होती है किससे कैसे swim करती है? वाटर में रहती है क्योंकि they swim by the help of fins and tails. इनके fins होते हैं और tails होते हैं by which they swim. Okay. And amphibians move have webbed feet by which they can swim, but they also have hind limbs to jump on land. As you know that amphibians can live on land and water. So if they are in water, they swim by their webbed feet. If they are on land, they jump by their hind limbs. Okay. Now reptiles such as lizard and crocodiles have limbs to move. इनके क्या होते हैं? limbs होते हैं to move. किसके? lizard और crocodiles के. But snakes do not have limbs. स्नेक्स पे कोई भी लिम्स नहीं होते. आपने उसके कोई पैर देखे हैं? हाथ पैर देखे हैं क्या? नहीं ना. तो दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड स्केल्स आर प्लेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज बाय विच दे मूव. इसके स्नेक्स कैसे मूव करते हैं? स्नेक्स के स्केल्स मसल्स जो होती हैं उनकी बहुत स्ट्रांग होती है और इनकी बॉडी पे स्केल्स या फिर प्लेट उसको बोल सकते हैं जिसके बॉडी के नीचे की साइड में बाय विच दे कैन मूव बाय क्राउलिंग. ये क्रॉल करते हैं ना, रेंग के आगे बढ़ते हैं. तो बाय दिस इज अबाउट द मूवमेंट ऑफ रेप्टाइल्स. यू कैन सी हियर स्नेक इज गिवन इन योर बुक. एंड बर्ड्स हैव विंग्स इंस्टेड ऑफ आर्म्स. बर्ड्स के क्या होते हैं? विंग्स होते हैं. मतलब हम लोगों के हाथ होते हैं वैसे बर्ड्स के क्या होते हैं? विंग्स होते हैं बाय विच दे कैन फ्लाई. वो इनके जो विंग्स होते हैं उनके थ्रू तो वो उड़ते हैं. देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ फीदर्स. इनकी बॉडी किससे कवर्ड है? बाय द फीदर्स. विथ द फीदर्स बर्ड्स हैव थिन हॉलो बोन्स विच मेक देयर बॉडीज लाइट. आपको पता है जैसे हम लोगों की बॉडी की जो बोन्स हैं तो अपनी बॉडी की जो बोन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेट होता है उनका. मीन्स वो हॉलो बोन्स नहीं है. बट जो बर्ड्स की अगर बात करें, पक्षियों की बात करें तो उनकी जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हॉलो बोन्स होती हैं. जैसे आपने एक पाइप देखेंगे, पाइप अंदर से खोखला होता है, वैसे ही इनकी जो बोन्स होती हैं अंदर से हॉलो बोन्स होती हैं. इससे क्या होता है? इनकी बॉडी का वेट कम रहता है और ये आसानी से उड़ पाते हैं. ओके. देयर बॉडीज आर शेप्ड लाइक एरोप्लेन्स. दिस हेल्प्स देम इजीली कट थ्रू एयर. और मीन्स इनकी बॉडी कैसी होती है? एरोप्लेन की जैसी होती है इसकी वर्ड्स की, जिससे कि ये आराम से एयर को कट करके फ्लाई कर सकते हैं. और ये अपने फीट को यूज करते हैं, हॉप करके मूव करते हैं. आपने देखा होगा वर्ड्स उछल के मूव करती है. मीन्स इसको हॉप करना बोलते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हॉप टू एंड दे मूव बाय हॉपिंग. सम बर्ड्स लाइक डक्स हैव वेब्ड फीट. क्योंकि ये वाटर में रहती है तो इनको तैरने के लिए, जैसे कि आपके आपने देखे फ्रॉग्स के वेब्ड फीट होते हैं, वैसे ही आपके डक्स के वेब फीट होते हैं, सो दैट दे कैन swim in the water. And some
बर्ड्स लाइक पेंगुइन, किवी, ऑस्ट्रिच। देखिए यहाँ पे आपकी पेंगुइन दी गई है। पेंगुइन कितनी भारी है, क्या ये उड़ सकती है? नो। पेंगुइन यूज देयर फीट टू वॉक एंड रन। इनके ये फीट हैं, ये फीट से ही क्या करते हैं, चलते हैं या फिर दौड़ते हैं। बिकॉज दे कैन नॉट फ्लाई, दे हैव ए हैवी बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होती है? हैवी होती है, सो दे कैन नॉट फ्लाई। ओके, नाउ वी विल मूव टू द मैमल्स। ये देखिए यहाँ पे बर्ड्स का दिया गया है। बर्ड्स की बीक, feathers, feet and wings. This is the, these are the parts of birds. Okay. If we talk about mammals, mammals के क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे mammals, एक एलिफेंट का एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो होते हैं दो, जिनको आप हाथ पैर जो भी बोलेंगे वो क्या बोलते हैं, फोर लिम्स होते हैं। एंड नेक्स्ट हैंड लिम्स, जो लास्ट वाले जो दो होते हैं पैर, इनको आप पैर ही बोलेंगे, इनको हैंड लिम्स बोलते हैं। तो जो मैमल्स होते हैं वो लिम्स के थ्रू मूव करते हैं, वॉक या रन करते हैं। किसके थ्रू? लिम्स के थ्रू। ओके, जो यहाँ पे जो फ्रंट लिम्स हैं उनको क्या फोर लिम्स बोला गया है, और जो बैक लिम्स हैं उनको क्या बोला गया है? हैंड लिम्स बोला गया है। मैमल्स कैन रन, हॉप और वॉक। मैमल्स रन भी कर सकते हैं, हॉप भी और वॉक भी। सम यूज देयर लिम्स टू स्विम, कुछ तैर भी सकते हैं अपने लिम्स को यूज करके। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स दो लिविंग इन वाटर आर मैमल्स। मैंने आपको बताया फिश कैसे, फिश के कैटेगरी में डॉल्फिन और व्हेल्स नहीं आते हैं। दे आर मैमल्स बिकॉज दे गिव बर्थ टू देयर बेबी, means they feed their own milk to their babies. Okay, so whales and dolphin are mammals. Okay, so it is about the animals, how the animals move. Okay, now we will move to the next page. Animals eat plants and other animals. Here we will discuss some animals which eat only plants are called herbivores, and some animals eat other animals are called carnivores, and some animals eat plant and other animals they are called omnivores. Means यहाँ पे जो ऐसे एनिमल्स आप पढ़ ही चुके हैं पहले, हर्बीवोर्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवोर्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनिवोर्स जो प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा एनिमल्स क्या खाता है। ओके, कैसे वो सरवाइव करते हैं। तो फिश की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट फिश, सम फिश ओनली फीड ऑन प्लांट्स, सम फिश फीड ऑन ओनली प्लांट्स, दे आर herbivores. Some fish feed only on animals such as smaller fish and worms. कुछ जो फिश होती हैं सिर्फ प्लांट खाती हैं, वो हार्बिवोरस है। बट सम फिश जो बड़ी फिश है, जो छोटी फिशेस को खाती हैं, या फिर कुछ और वर्म्स होते हैं उनको खाती हैं, दैट टाइप ऑफ फिशेस आर कॉल्ड कार्निवोरस। फिश विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस. Fish may also feed on decomposing plant and animals matter. Okay, this is about the fish. Now we will move to the next, how amphibian eat to how they can survive, कैसे ये क्या खाते हैं, कैसे survive करते हैं। तो amphibians such as frogs, अगर हम यहाँ पे frogs की बात करें, frogs देखिए यहाँ पे दिया गया है कैसे eat small insects। देखिए इसने अपनी टंग निकाली और इंसेक्ट को पकड़ लिया। और एक मतलब बहुत अच्छा फैक्ट है अबाउट द फ्रॉग दैट दे हैव लॉन्ग टंग। इनकी जो दे हैव ए लॉन्ग स्टिकी टंग, इनकी जो टंग होती है वो लॉन्ग और स्टिकी होती है, और सो दैट दे कैन कैच इंसेक्ट ईजली, इंसेक्ट को ईजली पकड़ लेते हैं क्योंकि स्टिकी होती है और लॉन्ग होती है। ओके, सो लार्ज स्नेक्स कैप्चर एंड ईट बिग एनिमल्स लाइक डियर एंड पिग्स। स्नेक्स जो होते हैं, जैसे आपको अजगर की बात करें तो अजगर क्या करते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स को भी खा जाते हैं, है ना। ऐसे या जानवर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, डियर और पिग्स, इनको खा जाते हैं ना। स्मॉलर स्नेक्स
eat insect, mice, birds, eggs, frogs and small mammals. जो छोटे स्नैक्स होते हैं वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट खाते हैं, माइस खाते हैं, बर्ड्स, एग्स, फ्रॉग्स एंड स्मॉल मैमल्स भी खाते हैं. ओके. स्नैक्स डू नॉट च्यू देयर फूड, दे swallow their food as a whole. पहले वो क्या करते हैं? वो चबाते नहीं हैं, वो सीधा निगलते हैं. कौन? स्नैक्स जब खाते हैं वो सीधा निगल लेते हैं, चबाते नहीं हैं. रेप्टाइल्स सच एज लिजार्ड एंड चैमेलियंस ईट इंसेक्ट विच दे ट्रैप विथ योर लॉन्ग स्टिकी टंग. जैसे यहाँ पे देखिए इनकी लॉन्ग स्टिकी टंग है, इसके ट्रैप में ही फंसा के इंसेक्ट को खाते हैं. ऐसे लिजार्ड भी खाती हैं और चैमेलियंस भी. ओके. सो नाउ वी विल मूव टू द वर्ड्स. यहाँ पे देखिए ये स्नैक कैसे कर रहा है? पूरा निकल रहा है ना माइस को, पैर पूरा निकल जाता है, तो च्यू नहीं करते, चबाते नहीं है. ओके. बर्ड्स सच एज ईगल्स ईट ओनली फ्लेश ऑफ एनिमल्स. जैसे ईगल्स हैं, ईगल्स क्या करती हैं? केवल एनिमल्स को खाती हैं. अदर बर्ड्स लाइक स्पैरो ईट फ्रूट, सीड्स एंड ग्रेन. जो स्पैरो होती है, छोटी चिड़िया आपने देखी होगी, क्या खाती है? वो अनाज के दाने खा लेती है. यहाँ पे देखो दिया गया है, ईगल्स क्या है? एनिमल्स है, क्या है? वर्ड्स है. बट ये क्या खा रहे? केवल फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं. ओके. क्योंकि इनके यहाँ पे क्लॉज भी आप देख सकते हो, क्लॉज कैसे हैं. एंड ये जो क्लॉज है ये इसको जिसको ये पकड़ते हैं जानवर को कुछ भी खाने के लिए, तो इसको हेल्प करते हैं. इनकी कैचिंग बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है, आराम से ये पकड़ लेते हैं और पकड़ के उड़ भी जाते हैं. ओके. एंड फैक्ट यहाँ पे दिया गया, देयर बीक्स हेल्प देम टू ईट, दे यूज देयर क्लॉज टू कैच फूड एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. इनकी जो क्लॉज होते हैं, बीक्स क्या करते हैं? इनको खाने में हेल्प करती है. और क्लॉज जो है क्या फूड को पकड़ने में और इनको अपने आप को भी बचाने में हेल्प करती है. अगर कोई दूसरी कोई बर्ड इन पे अटैक करती है तो ये क्या करते हैं? अपने पंजों से उसको घायल करके अपने आप को बचा सकते हैं. ओके. बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज एंड बीक्स विच आर सुटेबल फॉर देयर ईटिंग हैबिट्स. अब यहाँ पे बहुत अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग बीक्स होती हैं. ये पार्ट है बीक्स, जो उनकी चोंच होती है, और इनकी ये बीक्स और क्लॉज हर बर्ड का अलग अलग होता है, उनकी ईटिंग हैबिट पे डिपेंड करता है. ओके. मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैमल्स. मैमल्स सच एज cows, horses, deer, rabbits and giraffes are herbivores as they eat only plants. मैंने आपको बताया जो केवल plants खाते हैं they are herbivores. Okay. And some other animals like tigers, lions, wolves and snakes only eat flesh of other animals. मतलब दूसरे जानवरों को खाते हैं. So they are called carnivores. And some animals like bears, crows and humans are omnivores as they eat plants as well as flesh of other animals. ओके. मीन्स ये प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं. सो दे आर कॉल्ड omnivores. अब यहाँ पे देखिए आप फोटो देख सकते हैं. हर्बीवोर क्या है? जैसे आपकी काऊ दी है, एलिफेंट, दे ईट ओनली प्लांट, सो दे आर हर्बीवोर. ओके. एंड if we talk about tiger, they eat only flesh of other animals, so they are carnivore. And if we talk about bear, this bear can eat flesh of other animals and plant also, so they are omnivore. और इंसान भी ऐसे, ह्यूमन बीइंग भी जितने हैं वो दूसरे उसकी वो flesh of other animals भी खाते हैं और क्या करते हैं? प्लांट्स भी खाते हैं. सो ह्यूमन ऑल्सो आर omnivore. Now this is your first part of chapter 3. In the second part of chapter 3 we will start from the how animals breathe. Okay. So continue watching for the second part of the chapter 3. Okay. Thank you.